सबसे पहला विजुअल एक्विटी लेंगे, है ना। और विजुअल एक्विटी करने में क्या है, नॉर्मली क्या है, पेरिफेरल रेस जो होता है, जो इन्फिनिटी से जो रेस आती है, समझ रहे, तो पेरिफेरल रेस आर कमिंग इनटू द एंटर इनटू द आई इन रेस्टिंग कंडीशन, दैट रेस आर कमिंग एंड फोकस्ड एट द रेटिना, ठीक है, मैकुला जो होता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल आई। इमेट्रोपिया हो गया, इमेट्रोपिया एंड एमेट्रोपिया होता है, दोनों में डिफरेंस है। इमेट्रोपिया मीन्स इन नॉर्मल कंडीशन व्हेन द पेरिफेरल रेस कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी आर फोकस्ड एट द रेटिना, दैट इज कॉल्ड इमेट्रोपिया। When the peripheral rays coming from the infinity, they are focused in front of the retina or behind the retina, that is called emmetropic eye. Emmetropic eye means it may be myopia, hypermetropia, astigmatism. So three kinds of refractive error are present in the eye. Normally refractive error is treated by spectacles and a contact lens, ठीक है। For myopia we prescribe which kind of lens? Concave lens. In myopia, peripheral rays coming from the infinity are focused in front of the retina, so we need the diverging lens. Concave lens is the diverging lens, so the image is focused on the retina and patient is able to see the object properly. So myopia is treated by concave lens. And in case of the hypermetropia, peripheral rays coming from the infinity are focused behind the retina. In case of hypermetropia, size of the eyeball, yeah, visual axis is small, axial length is small, and it may be axial myopia and curvature myopia and index, three kinds. Hypermetropia is same, curvature, index and axial. In axial myopia, there is the axial length is increased, and curvature myopia, curvature is increased, and index, there is difference in the refractive index. Okay, so this is all about the myopia, and myopia is treated by concave lens. Then second one is the hypermetropia. What is hypermetropia? Just opposite the myopia. Farsightedness. Now define it. Behind the retina. So patient is unable to see the distant object, okay, as well as also near object. So rays coming from the infinity, parallel rays, are focused behind the retina. So we need the converging lens to focus the image at the retina. This is called hypermetropia. Hypermetropia is also when axial length is just opposite the myopia. What is the features of myopia? Axial length is increased, means anteroposterior diameter is raised. Curvature of cornea is raised. Depth of anterior chamber is deep, and image is focused in front of the retina. Just opposite in case of the hypermetropia. Axial length is smaller as compared to the myopia. Normal axial length is 22 to 23 millimeter, है ना?
तो then 23 millimeter less than. तो इसमें if the axial length is more than 23 millimeter, then it is called size of the globe is increased in case of pathological myopia. In hypermetropia, axial length is reduced. Curvature, cornea is less curved, and the depth of anterior chamber is shallow. And what is other condition where shallow anterior chamber is found? Glaucoma and hypermature cataract, or peripheral anterior synechia. In that case also shallow anterior chamber is found. So hypermetropia is treated by concave lens, and it is again three types: axial, curvature and index. So this is, and what is the astigmatism? They when the rays coming from the periphery, they are focused in different point and make a line of focus. That's why patient is unable to see the object clearly, and this is called astigmatism. Astigmatism may be with the rule astigmatism and against the rule astigmatism. What is the meaning of with the rule astigmatism? Vertical meridian is normally vertical meridian is smaller than the horizontal meridian. Due to the pressure of the lid, cornea is more curved in the vertically. So vertical meridian is less as compared to the horizontal meridian, and this is the with the rule astigmatism. So astigmatism is occur at the 180 degree. This is with the rule, and other than 180 degree, that is the against the rule astigmatism. You understand? Then aphakia. Aphakia is the condition. It is the high hypermetropia. Aphakia means high hypermetropia, and how much power of convex lens is prescribed in case of aphakia? Plus aphakia पढ़े होंगे तो मालूम होगा, जैसे हम 10-10 का ग्रुप बनाते हैं ना, उससे याद नहीं आया? +10 diopter convex lens plus minus cylindrical glasses for astigmatism, and for +3 diopter prescribed for the near vision. So this is the aphakia. And what is presbyopia? एज रिलेटेड रिफ्रैक्टिव एरर नहीं, प्रेसबायोपिया में होता क्या है? मतलब पेशेंट इज एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बट फेसिंग डिफिकल्टी टू फोकस द नियर ऑब्जेक्ट. मेन कंप्लेंट इज द पेशेंट इज हैविंग डिफिकल्टी इन द रीडिंग और टू सी द नियर ऑब्जेक्ट, या स्टिचिंग वगैरह, या थ्रेडिंग, निडल में थ्रेड करने के लिए थ्रेडिंग ऑफ द निडल. These are the main symptoms of the presbyopia. And the presbyopia reason, what is the reason? Ciliary muscles का tone reduce हो जाता है. And second one is the elasticity of the anterior capsule of the lens is also decreased due to the aging phenomena. There is the sclerosis. Due to the sclerosis, and normally in the retracted condition lens is shallow, but in the
relaxed condition. This is the normal condition, okay, and this is the ciliary body, and this is the zonular. Zonules are relaxed, but in accommodation, thickening of the lens is increased to focus the near object, and this is not in a straight condition, it is an relax, okay. So when they are stretched, anteroposterior lens is thin, and when it is relaxed, then thickness of the lens is increased to focus the near object, and this is the anterior capsule. Posterior capsule is the remain in the same condition, but it is normally flat, but anterior capsule is this is the normal condition, and it is curvature is increased, and thickness is increased to focus the near object. This is called presbyopia, accommodation to focus the near object. But due to the age of there is sclerosis occur, and accommodation is reduced. Accommodation power is at the age of 40 diopter, but the age of 40 accommodation is left only 1 diopter. At the birth it is 40, 10 years 40 diopter, 14 to 10, then 9, then 3, and gradually this is reduced to 1 diopter, and maximum we provide 3 diopter convex lens for near vision. So this is all about refractive error brief. अभी रिफ्रैक्टिव एरर का लेक्चर और होगा, सब्यसाची पढ़ाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को तो दूसरा ये टॉपिक पढ़ाना है, इसलिए इसको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दिया है ना. अब बोलो रिफ्रैक्टिव सर्जरी, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव सर्जरी की हमको नीड क्यों होती है? सबको चश्मा पहनना अच्छा लगता है? नहीं, इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, कि पूरे टाइम चश्मा पहनना है, बिना चश्मा पहने काम नहीं हो रहा है ना, कुछ भी काम करो तो चश्मा पहनो. फर्स्ट इज द फ्रस्ट्रेशन एंड इनटॉलरेंस ऑफ द स्पेक्टिकल्स. हर कोई चाहता है कि मैं भी खेलूं, बिना चश्मे के घूमूं फिरूं, यही चाहता है ना, पर चश्मे के साथ क्या, उसको थोड़ी सी कुछ तो रेस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है. तो इनटॉलरेंस ऑफ द ग्लासेस एंड कॉस्मेटिक्स पर्पस, कॉस्मेटिकली भी लोग चाहते हैं कि चश्मा ना रहे तो अच्छा है, कि सब लोग बिना चश्मे के जा रहे हैं, हम भी बिना चश्मे के घूमें. दिस इज द सेकेंड रीजन, intolerance of the lens. So these are the main indications of refractive surgery. तो रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए हम क्या करते हैं? There are 4 surfaces of the eye that is responsible for the refraction and focusing the image in the at point of retina. Anterior surface of cornea, posterior surface of cornea, anterior surface of lens and posterior surface of lens. तो अगर हमको सर्जरी करना है तो इसी 4 में से कहीं पर मॉडिफाई करेंगे तभी तो सर्जरी होगा ना. और रिफ्रैक्टिव मीडिया होता है. रिफ्रैक्टिव मीडिया क्या होता है? These are the refractive surfaces, and the refractive media is the aqueous humor and the vitreous humor. तो सर्जरी जो होता है ये रिफ्रैक्टिव सर्जरी, तो रिफ्रैक्टिव सर्जरी बेस्ड ऑन द सर्जरी ऑफ द सर्जरी रिलेटेड टू द anterior surface of the cornea and surgery of the lens.
refractive surgery done in the cornea and a refractive surgery done at the lens, है ना. तो surgery can be divided into two groups, refractive surgery of cornea and a refractive surgery of lens. तो इसमें कॉर्निया में भी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट क्या करते हैं इसमें, ओनली किरेटोटोमी, ठीक है, किरेटोटोमी एंड किरेटेक्टोमी एंड लेजर एब्लेशन. लेजर एब्लेशन में क्या करते हैं, और कुछ में क्या होता है, इम्प्लांट करते हैं, इंट्रास्ट्रोमल इम्प्लांट ऑफ द लेंसेस टू मैनेज द पावर. सो फर्स्ट वन इज द radial keratotomy and second one is the laser surgery. Laser surgery is divided into 2 groups. First one is the photokeratectomy and LASIK. तो हमको बस ये 3 सर्जरी के बारे में पढ़ना है. और उसके बाद नॉर्मली रिफ्रैक्टिव सर्जरी इज डन इन केस ऑफ द मोस्टली मायोपिक पेशेंट. हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट के लिए भी है रिफ्रैक्टिव सर्जरी, पर दैट आर ओनली क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, देयर इज नो एनी इंपॉर्टेंस इन द डेली लाइफ. ठीक है, अफेकिया के लिए भी सर्जरी कर सकते हैं. अदर वन आई अफेकिक है तो अदर आई को भी या तो इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट करो या फिर एंटीरियर चेंबर लेंस इम्प्लांट करो या स्क्लेरल फिक्सेटर लेंस लगाओ. ठीक है, तो अब हमको चाहिए इंडिकेशंस. हम मतलब लेसिक सर्जरी करने के पहले कुछ तो रिक्वायरमेंट होना चाहिए ना, कि कोई भी आया और बोला कि हमारा सर्जरी कर दो, हमको चश्मा नहीं पहनना है, तो ऐसे ही तो आप चूज नहीं करोगे. क्या करोगे सबसे पहले? पेशेंट का एज कितना होना चाहिए? मोर देन 18 ईयर्स. और उसका पावर ऑफ ग्लासेस 1 ईयर तक स्टेशनरी होना चाहिए, उसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए कि चेंजेस अप एंड डाउन हो रहे हैं ऐसा. ठीक है, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, पहले पेशेंट्स का विजुअल एक्विटी लोगे. विजुअल एक्विटी कैसे लोगे? विजुअल एक्विटी विदाउट ग्लासेस एंड विथ ग्लासेस, जो उसका पुराना है उसको. उसके बाद क्या करोगे, उसका रिफ्रैक्शन करोगे. सेकेंड पॉइंट क्या करोगे? रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन में क्या करेंगे? मैनिफेस्ट रिफ्रैक्शन एंड लेटेंट रिफ्रैक्शन. मैनिफेस्ट में क्या है, जैसे तुमने किसी को रिफ्रैक्शन कर रहे हो तो वो जो पावर कर रहे हो वो जितना दिखा रहा है दैट इज द मैनिफेस्ट. एंड इसको क्या करते हैं? अनडाइलेटेड करते हैं. अनडाइलेटेड इज द ड्राई रिफ्रैक्शन एंड डाइलेटेड इज द वेट रिफ्रैक्शन. सो अगर अनडाइलेटेड आप रिफ्रैक्शन कर रहे हो तो उसमें जो पावर आपको आ रहा है, फिर अगर आप डायलेट करके, डायलेट किससे करते हैं? साइक्लोप्लेजिक एंड ट्रोपिकासिल प्लस. तो इससे क्या होता है, जो तुम्हारा इसमें क्या है, अनडाइलेटेड करोगे तो तुम्हारा आई एकोमोडेट कर रहा है, तो जो तुम्हारा पावर आएगा वो एग्जैक्ट पावर नहीं होगा. होगा एग्जैक्ट पावर? समझ में आ रहा है तो कि नहीं आ रहा है? पढ़ के आया हो? और टॉपिक तो बता दिया था पहले से. यहां तक समझ में आ गया? तो क्योंकि मैं वो पावर पॉइंट ये है नहीं करके वो रेडी नहीं करी थी, तो सब वर्बली बोलते जा रही हूँ. ठीक है, तो कुछ पॉइंट में भी मिसिंग हो सकता है, पर जो बेसिक है वो तुमको सब बता दूंगी. ठीक है, तो कहां तक पहुंचे थे? हाँ, रिफ्रैक्शन, मैनिफेस्ट रिफ्रैक्शन एंड साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन. तो साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन कर देंगे तो इसमें क्या होता है? एकोमोडेशन क्या हो जाता है? देयर इज नो एकोमोडेशन, है ना. पैरालिसिस ऑफ द सिलियरी मसल, सो पेशेंट इज
नॉट एकोमोडेट। तो जो हम साइक्लोप्लेजिक आई ड्रॉप्स डाल करके जो रिफ्रैक्शन करेंगे दैट इज द एक्चुअल रिफ्रैक्शन। So first point is visual acuity, then refraction manifest and latent, then third point is the, अब क्या देखोगे, रेटिना देखोगे, और क्या क्या देखना पड़ेगा, कॉर्निया। तो नॉर्मली ये रिफ्रैक्शन हो गया। रिफ्रैक्शन के बाद देखोगे पेशेंट को ड्राई आई है कि नहीं है, समझ रहे हैं। अगर पेशेंट को ड्राई आई है या कोई इन्फेक्शन है, सर एनी कॉर्नियल सरफेस डिसऑर्डर्स है, तो उस कंडीशन में अगर उसको आप सेलेक्ट करोगे सर्जरी के लिए तो उसमें प्रॉब्लम होगा। और सेकेंड क्या होता है, मे बी any degenerative changes present in the cornea, patient suffering from systemic disorders, that may be hypertensive, diabetic patient is the most contraindicated. Why? In diabetic patient there is delayed healing of the wound, है ना। So फिर थर्ड पॉइंट क्या करोगे, थारो क्लिनिकल एग्जामिनेशन, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करोगे। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन में क्या करोगे, आप पूरा कॉर्निया देखोगे, कॉर्निया का सरफेस देखोगे स्मूथ, या एनी डिफॉर्मिटी शेप एंड डिफॉर्मिटी इन द शेप, व्हाट काइंड ऑफ डिफॉर्मिटी मे बी फाउंड, keratoconus and a keratoglobus. Keratoconus means conical shape of the cornea and keratoglobus means cornea is the globular shape, that is called, या फिर पेशेंट बुफ्थेल्मस में भी केराटोग्लोबस दिखते हैं, ठीक है। फिर कॉर्नियल इडिमा, कॉर्नियल डिजेनरेशन, पेशेंट को अभी कोई हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन हुआ होगा, अगर उसके में सर्जरी कर दोगे तो then it is exacerbate. And third one is the patient is under any medications means जैसे स्टेरॉइड, कुछ लोग स्टेरॉइड में रहते हैं बहुत लॉन्ग टाइम तक, स्टेरॉइड थेरेपी चल रहा है, या फिर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एंटी प्लेट, हाँ एस्पिरिन, जो हार्ट वाले पेशेंट लोग। तो ये जो पेशेंट्स है ये सब कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, समझ रहे हैं। तो इस, और उसके बाद तुम क्या करोगे, इसके अलावा और क्या देखना पड़ेगा, सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स हो गया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। व्हाट इज इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, हेपेटाइटिस बी और एड्स अगर पेशेंट्स को है तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को हम चूज नहीं करेंगे, ठीक है। और इंट्राओकुलर प्रेशर, और ये सब सोचते जाओ, सोच सोच के अपने आप आता जाएगा पॉइंट। इंट्राओकुलर प्रेशर अगर ज्यादा है तो उस कंडीशन में नहीं करेंगे, हाइपोटोनी है तो भी नहीं करेंगे, थाइसिस बल्बाई है तो भी नहीं करेंगे, या फिर आइराइटिस है, यूआइटिस है, रेटिनल डिटेचमेंट है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन, ब्रांच रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन, इल्स डिजीज जो विट्रियस हैमरेज में होता है, तो ये सब कंडीशंस रहेगा, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट्स को नहीं, तो ये सब जनरल एग्जामिनेशंस में आ गया यहाँ तक का, ठीक है। मतलब ये क्राइटेरिया तो हर किसी के लिए फुलफिल होना चाहिए। अब हमारे पास आ गया रिफ्रैक्टिव सर्जरी। रिफ्रैक्टिव सर्जरी इज बेस्ड ऑन द कॉर्निया बेस्ड सर्जरी एंड लेंस बेस्ड सर्जरी। कॉर्निया बेस्ड सर्जरी में क्या है तुम्हारा, पहला रेडियल किरेटोटोमी,
किरेटोटोमी मीन्स जैसे टोमी होता है और एक्टोमी बोलता है। एक्टोमी मतलब क्या होता है, पार्ट आप जैसे जैसे आइरिडोटोमी बोलेंगे एंड आइरिडेक्टोमी मीन्स, आइरिडोटोमी मीन्स ओनली मेकिंग द होल एंड आइरिडेक्टोमी मीन्स पार्ट ऑफ द यूवियल टिश्यू इज रिमूव्ड। सो ये रेडियल किरेटोटोमी पहले किया जाता था और अभी का तो बेस्ट है। अगर अभी रिफ्रैक्टिव सर्जरी कोई भी कराएगा तो अभी वन ब्रेड एंड बटर जैसा एक ही सर्जरी है, वो है लेसिक। अगर कराओगे तो लेसिक ही करोगे, क्योंकि पहले जमाने में तो लेजर था पर इतना एडवांस्ड नहीं था, समझ रहे हैं। और अभी के जमाने में तो हम फेम्टो लेजर भी आ गई, कैटरेक्ट सर्जरी भी लेजर से करते हैं, समझ रहे। तो ये तुमको बस नॉलेज के लिए जानना है कि व्हाट इज द रेडियल किरेटोटोमी। तो रेडियल किरेटोटोमी माइल्ड टू मॉडरेट मायोपिया के लिए किया जाता है। अब इसमें भी तुम्हारा 3 टाइप्स ऑफ वो आएगा ना सर्जरीज। तो मायोपिक पेशेंट्स के लिए अलग रहेगा, मायोपिक पेशेंट, हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट एंड एस्टिग्मेटिज्म। तो मायोपिक पेशेंट में हम क्या करेंगे, इसमें क्या है, कर्वेचर ज्यादा रहता है तो इसमें फ्लैटनिंग का काम करेंगे, कर्वेचर को कम करने का करेंगे, है ना। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, कर्वेचर इस कम होता है तो उसमें स्टिफनिंग का काम करेंगे। मतलब लेसिक सर्जरी दोनों में ही होगा पर हमारा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट रहेगा। एक में हम कर्वेचर इंक्रीज कर रहे हैं, एक में डीपनिंग बढ़ा रहे हैं, मतलब कर्वेचर को कम कर रहे हैं, ठीक है। स्टिफनिंग उसको करके कर्वेचर को बढ़ा रहे हैं हाइपरमेट्रोपिया पे। एंड एस्टिग्मेटिज्म में क्या है, एक पर्टिकुलर मेरिडियन, जिस मेरिडियन में उसको एस्टिग्मेटिज्म है उस मेरिडियन में कर्व इंसिजन देंगे, उसमें रेडियल इंसिजन नहीं देंगे, कर्व्ड इंसिजन या स्पाइन इंसिजन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो एक हल्का सा डायग्राम बनाती हूं मैं। ये क्या हो गया, प्यूपिल, ये तुम्हारा कॉर्निया हो गया, है ना। तो रेडियल किरेटोटोमी बोलते हैं, तो इसमें इस तरह से यहां तक ये जगह से ये जो सेंटर 3 मिलीमीटर जो एरिया रहता है उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। और इस तरह से एक डायमंड ब्लेड आती है, ठीक है। तो उस डायमंड ब्लेड से हम वहां पर ग्रूव करेंगे, ठीक है। तो वो ग्रूव कहां तक जाएगा, उसके लिए पहले आप एपिथेलियम एंड स्ट्रोमा अप टू द लेवल ऑफ स्ट्रोमा, मतलब 90% थिकनेस ऑफ द कॉर्निया इज कट। फिर जब कट कर दोगे रेडियल किरेटोटोमी तो हीलिंग होगा, तो हीलिंग होने के बाद क्या कट है तो वो रिट्रैक्ट होगा वहां पर से, तो रिट्रैक्ट होकर खिंचाव होगा तो तुम्हारा इसमें कर्वेचर कम होगा, समझ रहे। तो इससे हम माइल्ड टू मॉडरेट मायोपिया है उसको करते हैं, ठीक है। और ये सब करने के लिए भी हमको क्या चाहिए, पहले कॉर्निया का शेप स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करोगे, उसके बाद क्या करोगे, फ्लोरेसेंट स्टेनिंग करोगे। फ्लोरेसेंट स्टेनिंग करोगे तो अगर कहीं पर एपिथेलियल डिफेक्ट है, डीजनरेशन है, अल्सर है, तो वो तुमको फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। और क्या करोगे, स्टेनिंग के साथ साथ किरेटोमेट्री करोगे। व्हाट इज किरेटोमेट्री? टू असेस द डायमीटर ऑफ द कॉर्निया। पावर कैलकुलेशन के पहले करते हैं ना किरेटोमेट्री। तो किरेटोमेट्री एंड एक और होता है वीडियो किरेटोमेट्री, है ना। वीडियो किरेटोफोटोग्राफी, वीडियो किरेटोफोटोग्राफी एक मशीन होता है जिससे करते हैं।
ये इसको पूरा को बोलते हैं कॉर्नियल टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मीन्स शेप टू एग्जामिन द शेप ऑफ द कॉर्निया। ठीक है, और क्या करोगे? पेकीमेट्री। व्हाट इज पेकीमेट्री? एनीवन सुना है नाम पेकीमेट्री? नहीं, तुम लोग मतलब आई को अभी पढ़ ही नहीं रहे हो लगता है। नहीं नहीं, तो ये सब तो चैप्टर कवर हो गया है तुम लोग का। कंजक्टिवा, कॉर्निया, लेक्राइमल एपरेटस, स्क्विंट, ग्लाकोमा हो गया है ना थ्योरी में। तो ये सब तो कॉर्निया में पढ़ाया होगा, महेश ने पढ़ाया है लेक्चर, कॉर्निया का उसी ने लिया था। पेकीमेट्री मीन्स yes, to examine assess the thickness of the cornea. Normally cornea is the central part is the thinnest, and when you gradually go to the periphery, thickness is increases. What is the normal thickness of the cornea? Normal thickness of the cornea 3 to 4 मिलीमीटर। बुक से देख के बताओ, बुक में देखो, बुक रखो। थिकनेस ऑफ द कॉर्निया बताओ। जब हमको नॉर्मल थिकनेस ही नहीं पता रहेगा तो हम कैसे आगे प्रोसीड करेंगे? तुम लोग पढ़े रहते ना तो वो पेज एकदम फटाक से खुलता, वही पेज खुलता। पढ़े नहीं हो इसलिए पता ही नहीं है कि कहां पर है थिकनेस। थिकनेस शुरू में देखो, कॉर्निया का इंट्रोडक्शन जो दिया होगा शुरू में स्टार्टिंग में, वहां 0.55 millimeter. And this is the center thickness or peripheral thickness? Central. Or peripherally? 0.53 कितना बोला सेंटर का? 5.55 and peripherally तो कितना, वही तो चाहिए। Peripheral is 0.6 to 0.65. So centrally is the central part, जो प्यूपिल के सामने जो कॉर्निया का पार्ट होता है, that is the ऑप्टिकल जोन ऑफ द कॉर्निया। एंड हमारा जो रिफ्लेक्शन है पूरा सब वहीं से होता है, सेंट्रल से। ठीक है, तो पेरिफेरल रेडियल किरेटोटोमी में हम इसमें अप टू 90% थिकनेस ऑफ द कॉर्निया इज कट रेडियली कट बाय द डायमंड नाइफ। ठीक है, फिर उसके बाद वो रिट्रैक्ट होने के बाद तो ये ओनली सुटेबल है फॉर माइल्ड टू मॉडरेट मायोपिया। ठीक है, और अगर एस्टिग्मेटिज्म है तो एस्टिग्मेटिज्म है तो हम कॉर्निया में कौन सी सर्जरी करेंगे? उसमें रेडियल किरेटोटोमी ना करके इस तरह से जिस एक्सिस में है वहां पर कर्व्ड इंसिजन देंगे। ठीक है, तो कर्व्ड इंसिजन देंगे तो आफ्टर हीलिंग होकर के पर्टिकुलर मेरिडियन में जहां पर प्रॉब्लम है उसको वो कॉन्ट्रैक्ट करके कर्वेचर को, आफ्टर हीलिंग कर्वेचर इज रिड्यूस्ड। सो दैट इज फॉर एस्टिग्मेटिज्म। इसको बोलते हैं आरके फॉर एस्टिग्मेटिज्म, है ना। And this is for myopic. And second one is the laser surgery. लेजर सर्जरी में क्या क्या है? पहले क्या बताया था?
PRK मीन्स फोटो रिफ्रैक्टिव केरेटेक्टोमी, है ना. एंड सेकेंड वन इज द LASIK. What is the full form of LASIK? लेजर, हाँ, इन सीटू का मतलब क्या होता है? इन सीटू मतलब उसके उसी के अंदर में ही, मतलब थ्रू एंड थ्रू नहीं करना है, मतलब कॉर्डिया के स्ट्रोमा के अंदर में ही करेंगे ना. द कॉर्डियल सर्जरी 3 टाइप्स होता है. पहला तो ओनली एपिथेलियल लेयर को रिमूव करते हैं फर्स्ट में, एंड सेकेंड में क्या होता है, इंट्रास्ट्रोमल कॉर्नियल सर्जरी होती है. तो उसमें क्या होता है, एपिथेलियम को रिमूव कर देंगे और पार्ट ऑफ द स्ट्रोमा इज रिमूव्ड, एंड दिस इज कॉल्ड इंट्रास्टिशियल refractive surgery. And second one is the peripheral periphery of the cornea is released, release incision बोलते हैं. तो उसमें हल्का सा इंसिजन करके रिलीज कर दोगे, तो रिलीज करने के बाद फिर से वो हील होगा, तो उसमें आपका पोजीशन चेंज हो जाएगा उसका रिफ्रैक्टिव सरफेसेस. ठीक है, तो इसमें और क्या क्या पढ़ोगे तुम? लेसिक हो गया, लेसिक के बाद हाँ, अब इस सर्जरी का इंडिकेशंस हो गया, ट्रीटमेंट हो गया. अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस बोलो, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? ड्राई आई वाले पेशेंट को तो हम वैसे भी सेलेक्ट नहीं करेंगे. ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे और लुब्रिकेंट्स देंगे जिससे ड्राई आई ना हो करके. ठीक है, अगर कोई पेशेंट तुम्हारे पास जिसका रेडियल किरेटोटोमी हुआ है, वो आता है तुम्हारे पास एग्जामिन कर, तुम स्लिट लैम्प पे देखोगे तो तुमको स्कार मार्क दिखेगा पूरा रेडियली, ऐसे जैसे साइकिल का स्पोक होता है ना, जस्ट लाइक वैसे. स्लिट लैम्प पे देखोगे तो आप देख के ही बता सकते हो कि इसका रेडियल किरेटोटोमी हुआ है, समझ रहे हो? तो अगर ये जो थिकनेस 90% ऑफ द थिकनेस इज कट, तो मे बी कॉर्नियल परफोरेशन हो सकता है. दिस इज द सीवियर कॉम्प्लिकेशंस. और क्या हो सकता है? सेकेंडरी इन्फेक्शन होने से केरेटाइटिस होगा. और क्या हो सकता है? इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो सकता है. इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो यूवीआइटिस हो जाएगा. ठीक है, अगर पेशेंट को पहले से हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस इन्फेक्शन है तो और फ्लेयर अप हो जाएगा. ठीक है, सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस. एंड अब यहां पर तुम्हारा कॉर्निया बेस्ड सर्जरी का ये वाला फर्स्ट पार्ट. अब सेकेंड पार्ट हम आते हैं लेसिक. लेसिक करने के लिए भी जो हमने क्राइटेरिया बनाया है, उसके लिए क्या करोगे? पहले क्या करोगे? वही जो सेम चीज है. सबसे पहले तो विजुअल एक्विटी करोगे. मान लो तुम इसका ठीक है करके किसी समय बाई चांस बोल दो कि चलो तुम्हारा जो चश्मे का पावर है वही रहने देते हैं, और उसी पावर को तुम मान लेते हो और सर्जरी कर देते हो, तो तुम्हारा रिजल्ट सही नहीं आएगा. तो इसलिए प्री ऑपरेटिवली तुमको उसको करना ही होगा कि विदाउट ग्लासेस कितना विजन है उसका, विथ ग्लासेस कितना है, और रिफ्रैक्शन, मैनिफेस्ट रिफ्रैक्शन एंड साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन, बोथ करने के बाद ये तुम्हारा विजुअल एक्विटी का असेसमेंट हो गया. फिर थॉरो एग्जामिनेशन करोगे स्लिट लैम्प से, है ना. और सिस्टेमिक कोई डिसऑर्डर है कि नहीं, वो लैक्टेटिंग मदर में नहीं कर सकते, प्रेग्नेंट लेडी में नहीं कर सकते, एड्स पेशेंट पे नहीं कर सकते, और इम्यूनो सप्रेस्ड कंडीशन है उसमें नहीं कर सकते, पेशेंट्स को मार्फन सिंड्रोम है उसको नहीं कर सकते. ठीक है, और ऑटो इम्यून डिजीज है उसको नहीं कर सकते हैं. तो दीज आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस. फिर एपिथेलियल इरोजन है उसको नहीं कर सकते, किरेटोकोनस में नहीं कर सकते, किरेटो ग्लोबस में नहीं कर सकते, कॉर्नियल डिजनरेशन है नहीं कर सकते, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के केस में नहीं कर सकते, रेटिनल डिटेचमेंट है तब नहीं कर सकते, यूवियाइटिस या कोराइडाइटिस. ठीक है, ऑप्टिक एट्रोफी, तो ये सब कंडीशंस पे आप नहीं कर सकते. फिर उसके बाद प्रॉपर कॉर्निया को एग्जामिन करोगे तुम. प्रॉपर कॉर्निया का थिकनेस सेंटर पेकीमेट्री से
थिकनेस असेस करोगे। फिर कॉर्नियल सरफेस इज स्मूथ और नॉट, शेप में भी नॉर्मल और डिफरेंट, तो शेप के लिए किरेटोकोनस है कि नहीं वो एग्जामिन करोगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किरेटोमेट्री, किरेटोमेट्री करोगे तो उसमें किरेटोग्लोबस रहेगा, तो किरेटोग्लोबस में ग्लोबुलर शेप ऑफ द कॉर्निया इज चेंज, तो उसको तुम रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। किरेटोकोनस में, किरेटोकोनस में क्या करते हैं, क्या है ट्रीटमेंट किरेटोकोनस का, पीके बोलते हैं इसका ट्रीटमेंट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीके? एक लेमेलर रिफ्रैक्टिव कॉर्नियल सर्जरी होता है, इस पे क्या करते हैं, लेमेलर किरेटोप्लास्टी एंड फुल थिकनेस किरेटोप्लास्टी, ठीक है। अगर कॉर्निया में कहीं पर ओपेसिटी है, सुपरफिशियल ओपेसिटी है, only epithelium and a part of the stroma is involved, then lamellar keratoplasty is done, part of the opaque cornea is removed and a healthy donor cornea is implanted. This is called lamellar keratoplasty. And keratoconus में lamellar keratoplasty करने से कोई मतलब नहीं है। This is the conical shape of the cornea. Main optical part जो center part होता है, that is the thin out and the shape, it's a shape change into the conical shape. So we remove the corneal button. Corneal button मतलब उसका एक माप करने का आता है, तो उससे तुम माप करके कॉर्नियल बटन निकालोगे। फिर कॉर्नियल बटन जितना मिलीमीटर का है उससे 2 मिलीमीटर बिगर साइज में तुम डोनर बटन लोगे, ठीक है, डोनर आई का। और डोनर आई कब लेते हैं, अगर कोई आई डोनेट कर रहा है तो उसका आई हम कब रिमूव करेंगे, इसका भी तो कुछ क्राइटेरिया होगा ना। डेथ के कितने समय बाद, कौन सी पेशेंट का लेंगे, कौन से पेशेंट का नहीं लेंगे, नहीं पता। किरेटोप्लास्टी भी पढ़ा चुकी हूं मैं, पढ़ाई हो ना, वो क्लास में पढ़ाई थी लेक्चर हॉल में, ऑडियो वीडियो करके मैंने। अभी तो इसका बनाया नहीं था, नहीं क्योंकि ये प्रोजेक्टर वो है नहीं करके, इसलिए मैंने रेडी नहीं करी थी। अरे अभी अभी तो तुम लोग पास करके आए हो, फॉरेंसिक मेडिसिन नहीं पढ़ा है? कि आगे पार्ट पीछे सा पार्ट ऐसा चलते जा रहे हो। फॉरेंसिक मेडिसिन में पढ़े हो ना, ये जो भगवान ने हम लोग को ये जो उंगलियां दिया है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, समझ रहे हो क्या इंपॉर्टेंस है? पहला इंपॉर्टेंस बताओ इसका, तो ये सब सीख जाओगे। इसका क्या इंपॉर्टेंस है काउंटिंग के लिए? और ये सब बराबर क्यों नहीं है, ये भी तो सोच सकते हो ना। ग्रिप नहीं होता, और बराबर क्यों नहीं है? बराबर क्यों नहीं है? दिमाग लगाओ ना, लॉजिक 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 लगाओगे तो याद रहेगा। ये हमारी उंगलियां बराबर क्यों नहीं है, सभी एक बराबर, इसका क्या मीनिंग है? हाँ नहीं, पर बराबर क्यों नहीं है? देखो आपके भी 5 उंगली, मेरा भी 5 उंगली है, पर किसी का भी बराबर नहीं है, क्यों? इससे हमको क्या सीखने को मिलता है इस हाथ को देख करके? एक तो काउंटिंग कर सकते हैं, हाँ? और अगर ये अलग अलग रहे, समझ रहे, ये अगर अलग अलग रहे तो सबकी पावर कम हो जाएगी। पावर, अकेला उंगली किसी चीज को लिफ्ट कर सकता है? नहीं, 2 उंगली लगेगी। अगर मैं इसको उठा लिफ्ट कर रही हूं 2 लोग का, तो ये मतलब कोई भी काम करोगे तो 2 लोग मिलके करोगे तो कोई काम इजीली कर सकते हो। अगर इसको पूरा पंच ऐसा बना लो और किसी को मुक्के मारो तो कितना लगेगा? वो तो वही गिर जाएगा। तो मतलब अगर ये 5 मिल गए तो कितना शक्तिशाली हो गया ना। और क्या सीखोगे? 5 उंगलियां है तो इसका मतलब सेम क्लासरूम, सेम टीचर, सेम बुक, सेम एटमॉस्फियर, फिर भी सब लोग अलग हैं, है कि नहीं? है कि नहीं है? एक ही टीचर, मैं सबको ही पढ़ा रही हूं, पर इसमें से बहुत सारे लोग को, किसी को 50% समझ में आएगा, किसी को 70%, किसी को 80%, किसी को 90%, पर सबको इक्वल समझ में नहीं आएगा। किसी न किसी का
बहुत जगह डाउट रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इससे ये पता चला कि नहीं? 5 उंगली कितना बज गया? टाइम हो गया क्या? अरे नहीं, लेसिक बचा है तो अभी लेसिक बस थोड़ा सा ही बताना है, हो गया। तो लेसिक सर्जरी में हम क्या करते हैं? लेसिक सर्जरी में क्या करते हैं? लेसिक सर्जरी किसके द्वारा किया जाता है? लेजर के द्वारा। तो अपने पास कितने कितने तरह की लेजर है? लेजर बोलो। एक्जिमर लेजर बोलते हैं इसको, है ना। और हर लेजर का एक वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो आर्गन लेजर होता है, ग्रीन लेजर होता है, डायोड लेजर होता है, और क्या होता है? एनडी याग लेजर। तो एनडी याग लेजर से हम क्या करते हैं? कैप्सुलाटोमी करते हैं, ठीक है। यहां पर एनडी याग लेजर नहीं यूज होगा, ठीक है। फिर आर्गन लेजर, ग्रीन लेजर जो होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी रहता है उसके में यूज होता है। फोटो कोएगुलेशंस करते हैं लेजर के थ्रू, ठीक है। जैसे एन्यूरिज्म वगैरह रहता है, हैमरेज होता है, एंड नियोवास्कुलराइजेशन जानते हो? व्हाट इज नियोवास्कुलराइजेशन? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स, है ना। तो इसमें हम लेसिक में जो लेजर यूज करते हैं उसको बोलते हैं एक्जिमर लेजर। इसके द्वारा ये जो पार्ट ऑफ द टिश्यू इज रिमूव्ड, है ना। और एक और लेजर होता है जिसको बोलते हैं एपिलेजिक, है ना। इसमें एपिथेलियल सरफेस मतलब सुपरफिशियल सरफेस को एब्लेट कर देते हैं लेजर से। तो उसकी वजह नॉर्मली ये कर्व रहेगा, पर एपिथेलियम सरफेस को लेजर से आप डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर बाद में वो हीलिंग हुआ तो रिट्रैक्ट होगा, तो कर्वेचर तुम्हारा फिर डिक्रीज हो गया, है ना। इस तरह से ओनली एपिथेलियल में। पर लेसिक लेजर है ये इंट्रास्ट्रोमल होता है। इसमें क्या करते हैं? पहले ऊपर का एक कॉर्नियल बटन करके एपिथेलियल टिश्यूज को रिमूव कर देते हैं, और जो पार्ट ऑफ द टिश्यू है वहां पर लेजर बीम दिया जाता है। लेजर बीम के द्वारा लेजर करने से जो थिकनेस उसकी कम हो जाती है। उसके बाद आफ्टर एपिथेलियल ब्लेब इज रिपोजिशन, उसको रिपोजिशन कर देंगे, और करने के बाद पेशेंट को एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स या पैच लगा के भेज दिया जाएगा। फिर उसको पानी नहीं डालना रहेगा चोक में आफ्टर सर्जरी, ठीक है। मसलना नहीं रहेगा, ठीक है। और किसी स्विमिंग पूल में नहीं जाना है, कुछ स्ट्रेन नहीं करना है, वजन नहीं उठाना है, कुछ खेलने नहीं जाना है। नहीं तो उस कंडीशन में क्या होता है? कॉर्निया वीक रहता है, मे बी परफोरेट। तो लेसिक लेजर में क्या करते हैं? पार्ट ऑफ द स्ट्रोमा इज रिमूव्ड बाय द लेजर एब्लेशंस, ठीक है। तो उसकी वजह से थिकनेस कम हो गई, और थिकनेस कम होकर के कर्वेचर तुम्हारा कम हो गया। तो इसको क्या कहते हैं? मॉडरेट टू हाई मायोपिया को ट्रीट करने के लिए लेसिक लेजर करते हैं, जिसको कहते हैं लेजर इन सीटू केरेटोमिलियोसिस। तो जो पार्ट ऑफ द स्ट्रोमल टिश्यू को केरेटोमिलियोसिस के द्वारा डिस्ट्रॉय कर, जैसे हम फेको करते हैं कैटरेक्ट के लिए, तो उसमें न्यूक्लियस को इमल्सिफाइड किया जाता है ना। न्यूक्लियस को इमल्सिफाइड करके सक कर लिया जाता है। SICS में क्या करते हैं? ओनली कार्टिकल मैटर को सक करते हैं और न्यूक्लियस को पूरा का पूरा विड्रॉ कर निकाल लेते हैं। और नॉर्मल जो ECC होता है उसमें क्या करते हैं? पूरा इंसिजन बड़ा होता है तो उसमें ओनली न्यूक्लियस को नहीं, न्यूक्लियस के साथ कार्टिकल मैटर्स भी पूरा रिमूव कर लिए जाते हैं, ठीक है। ये सबका डिफरेंस है काइंड ऑफ सर्जरी, तो उसकी वजह से। और सभी में क्या होता है? एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सर्जरी करोगे तो इंसिजन ज्यादा रहेगा, एस्टिग्मेटिज्म ज्यादा होगा। SICS में छोटा इंसिजन होगा, एस्टिग्मेटिज्म कम होगा। फेको में इंसिजन और कम होगा, 2.4 to 2.6 मिलीमीटर का, तो इसमें एस्टिग्मेटिज्म और कम होगा। तो आवाज किस चीज की आ रही? ओ, तो हाँ, इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? अब इसका
लेसिक सर्जरी करने का डिसएडवांटेज क्या क्या होगा? डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकता है लेसिक लेजर का? अरे ड्राई आई क्यों बोल रहे हैं? ड्राई आई वाले पेशेंट का तो हमको करना ही नहीं है। ड्राई आई पेशेंट तो पहले ही वो गेट से ही बाहर हो गया है, उसको तो हमने एंट्री ही नहीं दिया है। ड्राई आई वाले को तो एंट्री ही नहीं देंगे ना। देखो इंट्राऑकुलर ये जो एपिथेलियल फ्लैप बनाया जाता है, ये क्या कोई और स्टूडेंट आ रहे हैं क्या? लेट का बस। हाँ, जो एपिथेलियल फ्लैप जो बनाते हैं तो उसका क्या, एम्पुटेशन ऑफ द एपिथेलियल फ्लैप, वो कट हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है? रिंकल्स हो सकता है एपिथेलियल फ्लैप। तुम लोग बोल के आए हो लगता है, हा? कुछ लोग को बोल के आए हो, हा? ये तो काम तो ऐसा नहीं होता है, ये काम ऐसा नहीं होता है, हा? क्या रिंकलिंग हो गया या लेसिक सर्जरी करने के बाद और क्या हो सकता है कॉम्प्लिकेशंस? फाइब्रोसिस हो सकता है। और क्या होता है? फ्लैप जो बनाए वो डिसलोकेट हो सकता है, सबलक्सेशन हो सकता है और एपिथेलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, और क्या होगा? लास्ट में इन्फेक्शन होगा। है, अगर ज्यादा थिनिंग हो गया तो इक्टेजिया होगा। इक्टेजिया मींस प्रोट्रूजन ऑफ द कॉर्निया। स्टेफाइलोमा में पढ़े होंगे इक्टेजिया, वीकेस्ट पार्ट जो लेयर होता है आई का, वहां से इंट्राऑकुलर कंटेंट प्रोट्रूड करता है, दैट इज कॉल्ड इक्टेजिया, है ना। और क्या हो सकता है? ग्लेयर होगा, लाइट में जाने से ग्लेयर होगा ना। ग्लेयर क्या होता है? ग्लेयर और फोटोफोबिया दोनों में क्या डिफरेंस? लाइट द इंटॉलरेंस ऑफ द लाइट, है ना। और इसका कॉम्प्लिकेशंस और होता है, इसमें स्टार शेप्ड का वो फोटो रेडिएशन निकलेगा, समझ रहे हैं? जैसे लाइट जो आ रही है नॉर्मली, जिसको नहीं है उसको तो नॉर्मल लाइट दिखेगा, पर उसको क्या लगेगा? लाइट एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, अलग अलग से एंगल्स दिखेगा, है ना। कॉम्प्लिकेशंस हो गया, कॉम्प्लिकेशंस बोल दिया, इंडिकेशंस बोल दिया, ट्रीटमेंट हो गया। ट्रीटमेंट का क्या कॉम्प्लिकेशंस ये हो गया, इंडिकेशन सब बता दिया।